Hello, good afternoon, students. I am your teacher Deepak Juneja, and today we are going to begin the second part of the lesson, the anime. The first part of this lesson has already been uploaded on this YouTube channel. If you haven't gone through that video, you can go through easily. I'm going to put the link of that particular first part in the description of this video. So let's begin with the second part. But before we begin the second part, let's come to the first part, the summary of the first part. So who are the main characters in this story? Dr. Sadao and Hana. Both are husband and wife. They coincidentally come across a wounded person who happens to be an American. He is very much injured because of the sea rocks, and one gun also has been shot on his back. Dr. Sadao and Hana both are confused. Both are in a kind of dilemma what to do next, whether to take that particular man in their house to treat, or just to avoid him, to throw back into the sea, or not to treat him. Because if they treat him, if they take him into the home, definitely police would arrest them, because that would be a kind of traitor act. So if they did not treat him, then definitely it was going to be a cheating with their profession. At last they decided to take him to their home. Humanity won, and there he decided to operate the person. And while servants of the home started to resist, they started to show protest, because they were superstitious, they were fearful as well. They were superstitious that the bullet and the sea had tried to kill that American, but their owner, their master, Dr. Sadao, was trying to save him. So definitely the bullet and the sea would be taking a revenge on Dr. Sadao. In that way they were very afraid and they were very superstitious. Then Hana herself had to wash that particular person, that American wounded person, because the servants clearly refused to wash the person. So while she was washing the person, she was thinking about his skin. तो जब वो उसको वॉश कर रही थी तो उसके स्किन के बारे में सोच रही थी. So here we begin. While she was thinking these thoughts, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, means she was thinking about the skin of the person, not really liking the man better now. She had no intention, means she did not like the man. उस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. But he was no longer a child. She kept on washing him, लेकिन उसको वॉश करती रही until his upper body was quite clean, जब तक कि उसकी upper body पूरी तरह से clean नहीं होगी. But she dared not turn him over. She had no courage to turn him over. लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसे turn कर सके. This may be because of many reasons. The first reason may be that she may not have such kind of power or courage to see the blood wounds. हो सकता है कि उसमें उन घावों को देखने का साहस नहीं हो, इसलिए she could not turn him over. Where was Sadao? And she was thinking about Sadao, where he was. Now her anger was ebbing. Ebbing means rising. उसका जो anger था वो पूरी तरह से उबल रहा था, उसका गुस्सा उबल रहा था. एंड शी वॉज एंक्शस कहते हैं वर्ड को, अगेन. एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल. वो उठी और एब्सेंट माइंडेडली उसने रॉन्ग टॉवल का यूज़ कर लिया अपने हाथों को साफ करने में. देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड. चिल्ड मीन्स ठंड ना लग जाए. लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि उस आदमी को ठंड लग जाए. शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. उसने उसके ऊपर चद्दर रख दी. सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली. देन शी कॉल्ड सदाओ. तब उसने सदाओ को आवाज़ लगाई. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन. वो अंदर आने ही वाला था व्हेन शी कॉल्ड. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट. मीन्स एज सुन एज डॉक्टर सदाओ पुट द हैंड ऑन द डोर, हाना कॉल्ड हिम. जैसे डॉक्टर सदाओ ने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया, उसी समय उसने उसको बुलाया. दैट मीन्स टू से इट वॉज जस्ट a kind of coincidence कि उसने आवाज़ लगाई और वो आ गया. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. So these two things, surgeon's emergency bag
and surgeon's coat. These two things clearly indicate that Dr. Sadao had made up his mind, completely made up his mind to operate the person. That's why Hannah asked, "You have decided to operate?" तो क्या तुमने ऑपरेशन करने का डिसाइड कर लिया है? Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel. Sterilized towel कहते हैं germ-free towel. Upon the floor of the tokonoma alcove. Tokonoma alcove कहते हैं जो घर में नीचे की तरफ बनी हुई ताक होती है, उसे कहा जाता है. एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स उस ताक के अंदर रख दिए. फैच टॉवल्स, देन ही आस्क्ड फॉर टॉवल्स, उसने कहा टॉवल्स लेकर आओ. शी वेंट ओबीडियंटली हाना, बट हाउ एंशियस नाउ टू द लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स. बट शी वॉज वेरी मच वरिड अबाउट लिनन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स. वो अपनी जो लिनन एक कपड़े का मटेरियल का नाम होता है, उसकी जो शेल्स थी उनके बारे में बहुत टेंशन में थी और उसने टॉवल्स निकाल लिए. देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. While she was taking towels, she also was thinking about matting. जब वो टॉवल ले रही थी तो मैटिंग के बारे में भी सोच रही थी. मैट मतलब चटाई टाइप की जो चीज़ें हैं, कोटिंग बिछाई जा सके ताकि ब्लड जो है फ्लोर कवरिंग है उसको नुकसान ना पहुंचा सके. र्यून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और डैमेज. शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो पीछे की बरांडा की तरफ गई. वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ की गार्डनर मैटिंग की स्ट्रिप्स को रखता था. विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स. श्रब्स कहते हैं झाड़ियाँ या पेड़ पौधों के लिए यूज़ होता है उन कोल्ड नाइट्स. एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम, और अपनी हाथ में जितने भी मैटिंग्स आ सकती थी वो उठा लाई. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी saw this was useless. Why was this useless? Means matting, bringing this matting was useless because the blood had already soaked through the packing in the man's wound. क्योंकि उस आदमी के घाव में जो पैकिंग यानी उसके ऊपर जो मरहम पट्टी की हुई थी उसमें से ब्लड पहले ही निकल कर आ चुका था. एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और जो मैट जो नीचे थी फ्लोर कवरिंग दैट हैड बीन ruined, उसको नुकसान पहुंच चुका था. ओह द मैट, शी क्राइड. यस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड. तो लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ क्राइम. हाना cried like anything. Hannah cried, but Sadao simply replied. It means to say Sadao was not worried about the mattings and quilt and all other things. He was rather worried about his patient. That's why he only replied as though he did not care. And further it is written there कि उसे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी. Help me to turn him. He was completely focused towards his patient. मेरी हेल्प करो इसे टर्न करने में. He commanded her. She obeyed him without a word. उसने बिना किसी वर्ड के, बिना किसी बात के उसके ओबे किया. एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने उस आदमी की बैक को केयरफुली वॉश करना शुरू कर दिया. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड. देन एट दैट टाइम हाना गेव इंफॉर्मेशन टू हर हस्बैंड अबाउट यूमी आल्सो, दैट यूमी हैड क्लियरली रिफ्यूज टू वॉश हिम. देन सदाओ आस्क्ड, डिड यू योरसेल्फ वॉश हिम? देन शी सेड, यस इट वाज मी हु वॉश्ड. फिर उसने बताया कि कैसे उसने ही उसको वॉश किया था. Yes, she said. He did not seem to hear her. लेकिन now Hannah noted that Dr. Sadao was not hearing her. उसको लगा कि हाना को लगा कि डॉक्टर सदाओ उससे सुन ही रहा था उसकी बात को, क्योंकि she was used to this absorption. used to कहते हैं habitual को. She was habitual of absorption कहते हैं completely lost. वो इन सब चीज़ों की हैबिचुअल थी. हाना किन चीज़ों की हैबिचुअल थी? यानी उसका पति काम करते करते कहीं और खो जाया करता था, यानी काम में पूरी तरह से खो जाया करता था. उसी को लिखा गया एब्जॉर्प्शन, कम्प्लीटली लॉस्ट. दैट्स वाई ही वॉज नॉट हियरिंग, और इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुन रहा था. शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए उसने सोचा, इफ़ इट मैटर टू हिम, कि ये बात भी उसके लिए महत्व रखती है कि नहीं रखती, कि व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली. यानी वो बॉडी किसकी थी जिसके ऊपर वो इतना एक्सीलेंटली काम कर रहा था? क्या वो बॉडी भी उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती है? यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड. देन डॉक्टर सदाओ सेड कि यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक, कि तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा इसको. एनेस्थेटिक इज अ मेडिसिन फॉर अनकॉन्शियसनेस विच इज जनरली गिवन टू द पेशेंट्स बिफोर ऑपरेशन. डॉक्टर सदाओ इन्फॉर्म्ड हाना कि तुम्हें इसको एनेस्थेटिक देना पड़ेगा.
I, she repeated blankly, but never have I. Then Hannah said that I have not given anesthetic to any patient. I am not habitual of this act. How will I be doing this one? It is easy enough, he said impatiently. Then Dr. Sadao also said कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से तुम कर सकती हो. He was taking out the packing now. Now he was opening the wound packing, means घाव की जो पट्टी थी उसको खोल रहा था. And blood began to flow more quickly. और खून जो है अब तेज़ी से बहने लगा. He peered into the wound with the bright surgeon's light. उसने वूंड में यानी जो घाव था उसमें अपनी लाइट, सर्जन्स लाइट, यहाँ उसके लाइट लगी हुई है ऊपर, ये इस पिक्चर में यहाँ पर सिर पे लगी हुई है, on his forehead. The bullet is still there, and he found that bullet was still there. He said with cool interest, now I wonder how deep this rock wound is. अब मुझे ये देखना है कि ये रॉक का जो घाव है ये कितना गहरा है. It is not too deep, it may be that I can get the bullet. ये इतना गहरा नहीं है कि मैं इसमें से बुलेट नहीं निकाल सकता. But the bleeding is not superficial. लेकिन ब्लीडिंग कम नहीं है. He has lost much blood. उसने बहुत सारा खून खो दिया है. At this moment Hannah choked. और इस समय हाना जो है चौक हो गई, यानी शी वांटेड टू से समथिंग बट शी कुड नॉट से, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं. ही लुक्ड अप. अब वो क्यों चौक हो गई? बिकॉज ऑफ ब्लड. ब्लड इतना बह रहा था उसके कारण वो चौक हो गई थी, या उस बिल्कुल तो एक तरह से मूर्ति की तरह खड़ी हो गई. उससे कुछ बोला भी नहीं गया है. उसने कभी इतना खून शायद हो सकता है अपनी ज़िंदगी में देखा ना हो. ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. डॉक्टर सदाओ ऑल्सो नोटेड दैट हिज वाइफ्स फेस हैज़ फेडन. उसने भी नोट किया कि उसकी वाइफ का जो फेस का जो कलर है वो सल्फ़र का कलर हो चुका है, यानी उसका फेस का कलर फीका पड़ चुका है. डोंट फेंट, बेहोश मत हो जाना, ही सेड शार्पली. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, बट ही डिड नॉट पुट हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. ही मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ हिज वाइफ बिकॉज ही नोटेड दैट शी वॉज फेंटिंग. उसे अपनी वाइफ की परवाह करनी चाहिए थी क्योंकि वो फेंट हो रही थी, बेहोश हो रही थी, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की और अपना इंस्ट्रूमेंट छोड़ा नहीं. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. और उसने बताया कि अगर मैंने इस समय स्टॉप कर दिया तो ये आदमी मर जाएगा, क्योंकि उसका वुंड का जो पैक है वो खोल दिया गया था, घाव, और उसमें से खून बहुत तेज़ी से बह रहा था. शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम. उसने अपने हाथों को क्लैप किया. क्लैप करने का मतलब ताली बजाने के जैसे अंदाज में, थोड़ा सा घुमा के अपने मुंह को ढक लेने के अंदाज में, और उसने अपने मुंह को कवर किया. लीप्ड अप, वहाँ से भागी रूम से, कमरे से बाहर. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग. रेचिंग कहते हैं वॉमिटिंग को. और गार्डन के बाहर उसे आवाज़ आई कि शी वॉज वॉमिटिंग, बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क. बट ही कंटिन्यूड टू डू हिज वर्क. ही डिड नॉट केयर अबाउट हर बिकॉज फॉर हिम एट दैट टाइम हिज पेशेंट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that of course she had never seen an operation. So we have come to know कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी ऐसा ऑपरेशन देखा नहीं था. Too much blood, इतना सारा ब्लड भी उसने नहीं देखा था. Her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. तो एक तो उसका डिस्ट्रेस मीन्स उसकी टेंशन. किसकी टेंशन? हाना की टेंशन. और उसकी इनएबिलिटी, डॉक्टर सदाओ की इनएबिलिटी उसको मैनेज करने में या उसकी केयर करने में, इसने डॉक्टर सदाओ को बहुत इम्पेशेंट कर दिया. इम्पेशेंट मीन्स थोड़ा सा अधीर हो गया वो. इरिटेबल मीन्स फ्रस्ट्रेशन से भर गया. और विद दिस मैन, उस आदमी से, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो आदमी उसके इंस्ट्रूमेंट के नीचे था. यानी ही वॉज वेरी इरिटेटिंग. उसको बहुत इरिटेशन हो रहा था कि ये आदमी क्यों आ गया यहाँ पे. अब मैं अपनी वाइफ को का ध्यान रखना चाह रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को संभालना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं संभाल पा रहा हूँ, और वो बहुत टेंशन में आ रही है सिर्फ इसी आदमी के कारण. दिस इरिटेशन वॉज विद हिम. दिस मैन, ही थॉट, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस. देन ही थॉट कि ये आदमी जो मेरे पास में यहाँ पर है, इसके पास में कोई रीज़न नहीं है, इसको ज़िंदा क्यों रहना चाहिए. ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, उसे ज़िंदा क्यों रहना चाहिए. वो मेरी आंखों के सामने है लेकिन उसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए. लेकिन इस थॉट ने उसे रूथलेस बना दिया. रूथलेस मीन्स क्रूअल बना दिया. एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उसने तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया. यानी जैसे कोई काम नहीं हो रहा होता, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती तो हम ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं, उस तरीके से उसने किया. इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, लेकिन उसके इस तेज़ी से काम करने से लेकिन आदमी को, उसको मोन्ड का मतलब ही क्राइड विद पेन.
दर्द के मारे चिल्लाया, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। लेकिन सदाओ ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस केवल उसने बड़बड़ाना शुरू किया। ग्रोन, चिल्लाओ, ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया। ग्रोन इफ़ यू लाइक, बड़बड़ाओ, चिल्लाओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, आई एम नॉट, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। मैं अपने खुशी से नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। दिस वॉज सेड बाई डॉक्टर सदाओ। द डोर ओपनड and there was Hannah again. Hannah had brought the anesthetic, or not, she had not brought the anesthetic. उसने डॉक्टर सदाओ से पूछा, वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक है कहाँ? शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। सदाओ mentioned with his clear voice is the indication that now she was well, now she was okay. सदाओ motioned with his chin. सदाओ ने अपनी चिन से इशारा किया, अपनी ठुड्डी को घुमाकर इशारा किया कि वेयर द एनेस्थेटिक वॉज। इट्स एज वेल दैट यू कैम बैक, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी गुड दैट यू कैम बैक। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टर, स्टर मीन्स मूव। ये जो फेलो है, यानी ये जो आदमी है, इसने हिलना शुरू कर दिया। हिलना शुरू का मतलब दर्द के मारे हिलना शुरू कर दिया। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड। शी हैड फाउंड दैट एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक तो उसको मिल ही गया था। हाउ शैल आई डू इट, इसको मैं कैसे करूँगी, उसने पूछा। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कॉटन को भिगोओ, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, और इसकी नॉस्ट्रल्स के पास में लगाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट एंड द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाओ ने आंसर दिया और बिना किसी वक्त को गंवाए, बिकॉज ही वॉज हिज डिटेल, द नेचर ऑफ हिज वर्क वॉज वेरी इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मीन्स वेरी टफ। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे लिटिल, जब वो बुरी तरह से सांस लेने लग जाए उसे थोड़ा सा हटा दो। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, तो वो यंग अमेरिकन के फेस के पास में आई। इट वॉज ए पिटियसली थिन फेस, ये बहुत पतला सा फेस था। शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। उस इंसान को बहुत पीड़ा हो रही थी, चाहे वो जानता था या नहीं जानता था। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ prisoners were true. So while she was doing that work, जब वो ये काम कर रही थी, suddenly her mind diverted, उसका दिमाग डाइवर्ट हो गया to the stories which she had heard. उन स्टोरीज़ की तरफ उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया जो उसने प्रिजनर की स्टोरीज सुनी थी लोगों से। They came like flickers of rumor. Rumor means अफवाह, अफवाहों की तरह वो स्टोरीज उसके कानों में पड़ती थी। Told by word of mouth and always contradicted, कई लोगों के द्वारा सुनाई जाती थी। और ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड मीन्स उनमें हमेशा विरोधाभास हुआ करता था, यानी एक व्यक्ति की सुनाई हुई कहानी दूसरे व्यक्ति की सुनाई हुई कहानी से नहीं मिलती थी। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लेडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आती थी कि जापानीज़ आर्मी बहुत अच्छा कर रही है, जहाँ भी जाती है लोग उसको ग्लेडली वेलकम करते हैं, वो बहुत अच्छी लड़ाई कर रही है। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन ए जनरल ताकीमा, and then her mind diverted towards this general Takima. जनरल ताकीमा वही जनरल है जो शुरुआत में बताया गया कि बूढ़ा था, उसके कारण डॉक्टर सदाओ को वहीं रखा गया था। Who at home beat his wife cruelly, उसके बारे में फेमस था कि वो अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से मारता था। Though no one mentioned it now that he had fought so very victorious a battle in Manchuria, हालांकि वो बहादुर व्यक्ति था, उसने बहुत बड़े बड़े बैटल्स भी लड़े थे। But nobody talked about his करेजियसनेस, कोई भी उसकी करेजियसनेस के बारे में बात नहीं करता था। ऑल पीपल टॉक्ड अबाउट ओनली हिज होम वायलेंस, सभी लोग उसके घर की वायलेंस के बारे में बात करते थे कि किस तरह से वो अपनी पत्नी को मारता था। तो वाई वॉज शी थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, बिकॉज शी थॉट दैट कि जब जनरल ताकीमा अपनी वाइफ को ही नहीं छोड़ता है तो वो इसको कैसे छोड़ेगा, इस आदमी को। शी डज नॉट नो इफ़ ए मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। द सेम थाट ही वॉज विद शी, उसने वही चीज़ सोची, अगर उसने अपने औरत को ही उसके साथ में भी इतना बड़ा मिसबिहेव किया है तो वो इस व्यक्ति के साथ में क्यों नहीं करेगा, या इस व्यक्ति को क्यों छोड़ देगा। शी होप्ड एंक्शसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। एंक्शसली मीन्स वरिड, शी होप्ड वरिडली कि इस यंग मैन को तो कम से कम किसी ने टॉर्चर नहीं किया है। इट वॉज एट दिस मोमेंट, बट एट दैट सेम मोमेंट, लेकिन उसी मोमेंट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक,
उसकी गर्दन के पीछे की तरफ उसे गहरे गहरे लाल घाव दिखाई दिए, जस्ट अंडर द ईयर, कान के बिल्कुल नीचे. दोज स्कार्स शी मर्मर्ड, lifting her eyes to Sadav. So she had realized that those scars were clear-cut indication that he had been tortured, कि उसे torture किया गया था. That's why she asked about those scars to Dr. Sadav, but Dr. Sadav did not answer. At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. When Dr. Sadav he was doing the work, और उसका इंस्ट्रूमेंट अब किसी हार्ड चीज़ से टकराया अंदर ही अंदर, डेंजरसली नियर द किडनी, बिल्कुल किडनी के पास में. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, इट मीन्स टू से ही हैड फाउंड द बुलेट. इसका मतलब एक ही निकलता था कि उसको बुलेट मिल गई थी. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर. ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड दैट बुलेट. ही प्रॉप्ड विद हिज फिंगर्स, अपनी फिंगर्स के साथ में उसने टटोलना शुरू किया उस बुलेट को. प्रॉप का मतलब होता है सर्च करना, टू सर्च डेलिकेटली, बहुत ध्यान से, फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. और उसे इस ह्यूमन बॉडी की हर पार्ट की पूरी तरह नॉलेज थी. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. और उसके ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर जो एनाटॉमी के थे वो भी उसकी नॉलेज की प्रशंसा करते थे. इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिंसर्स. He had thundered at his classes years after year. To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder. So when his professors used to praise him for his knowledge of human body, he used to say that ignorance of the human body, कि जो ह्यूमन बॉडी की इग्नोरेंस एक सर्जन के लिए पाप है. अगर उसे ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट की जानकारी नहीं है और फिर भी वो सर्जरी कर रहा है, तो इट इज़ जस्ट लाइक मर्डर. ये बिल्कुल मर्डर की तरह है. इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मर्मर्ड. ही वॉज वेरी रिलीव्ड और रिलैक्स्ड, क्योंकि बुलेट बिल्कुल किडनी के ऊपर नहीं लगी थी, किडनी के आसपास ही थी. इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट when he forgot himself in an operation, my friend. So he was in habit of calling his patients like my friend. It is irony there that he was treating his enemy, कि वो अपने enemy का इलाज कर रहा था लेकिन उसको my friend के नाम से बुला रहा था. He always called his patients, and so now he did, forgetting that this was his enemy. Then quickly, with the cleanest and most precise of incision, the bullet was out. फिर बहुत अच्छे तरीके से और बहुत एग्जैक्ट तरीके से बुलेट को बाहर निकाल लिया गया. द मैन क्विवर्ड का मतलब कांपा. बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन वो अभी भी बेहोश था. नेवरदलेस ही मटर्ड ए फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन फिर भी वो कुछ इंग्लिश वर्ड बोला. गट्स ही मटर्ड चॉकिंग. दे गॉट माई गट्स. गट्स यहाँ पर आंतों के लिए यूज़ किया गया है, यानी मेरी आंतें बहुत दुख रही, उन्होंने मेरी आंतें उखाड़ दी. This was clear cut the symbol of torture which he had undergone. ये उस टॉर्चर की तरफ इशारा करता है जो उसके साथ में हुआ. Sadav, Hannah cried sharply. Hush, Sadav said. The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist. वो आदमी वापस sank into silence का मतलब होता है fell unconscious. वो आदमी वापस से बेहोश हो गया. So profound means इतने deeply बेहोश हो गया that Sadav took up his wrist. सदाव ने उसकी कलाई को पकड़ा. हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि उसे उसके कलाई से बहुत नफरत थी. यस, देयर वाज स्टिल ए पल्स, बट ही नोटेड दैट पल्स वाज देयर. द पर्सन हैड नॉट डाइड, इट वाज फीबल. द पल्स वाज फीबल मीन्स वीक. पल्स उसकी कमज़ोर थी बट इनफ इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव हर. और इतनी फीबल थी, इनफ थी कि ये उस इंसान को ज़िंदा रख सकती थी. बट सर्टेनली आई डो नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट. लेकिन बार बार उसके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि ये आदमी जिंदा क्यों रहे. नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना को उसने कहा ज़्यादा एनेस्थेटिक मत दो, ज़्यादा एनेस्थेटिक देने से प्रॉब्लम हो सकती. ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज ए स्मॉल वायल एंड फ्रॉम इट फिल्ड ए हाइपोडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म. ही टर्न्ड स्विफ्टली मीन्स रैपिडली, फुर्ती से. एंड एज इतनी फुर्ती से मुड़ा जैसे कि वो कभी रुका ही नहीं था. एंड मेडिसिन्स में से उसने एक छोटी सी वायल कहते हैं शीशी, एक छोटा सा इंजेक्शन निकाला. एंड फ्रॉम इट फिल्ड हाइपोडर्मिक, और उसमें से एक हाइपोडर्मिक यानी लाइफ सेवर मेडिसिन भरी. एंड थ्रस्ट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म,
और उसे पेशेंट की लेफ्ट आर्म में थ्रस्ट कर दिया, यानी इंजेक्शन लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। उसने दोबारा मैन की रिस्ट को चेक किया। ये लाइफ सेवर मेडिसिन उसने इंजेक्ट की थी। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर। तो ये पल्स उसकी उस आदमी की जो थी वो जो कम चल रही थी वो तेज हो गई थी। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल ही सेड टू हाना इनसाइड। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन ये आदमी ज़िंदा रहेगा ही रहेगा। दिस इज़ आल्सो आयरोनिकल। एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि कुछ भी कर लूँ आदमी ज़िंदा रहेगा, लेकिन एक तरफ उसको बचाने की कोशिश भी वही कर रहा है। द यंग मैन वॉक। कुछ समय बाद द यंग मैन वॉक, जागा, सो वीक, बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड। उसकी नीली नीली आंखें बहुत डरी हुई थी। वैन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, वैन ही अंडरस्टूड कि वो कहाँ पहुँच गया था। उसको भी समझ में आ गया था कि दीज पीपल वर जापानीज़, कि ये लोग जापानीज़ थे, उसके साथ में कुछ भी कर सकते थे। देन हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। उसने खुद उसे खाना वाना परोसा, उसकी सेवा की, बिकॉज नो सर्वेंट वॉज रेडी टू एंटर इन टू द रूम। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब वो पहली बार आई तो उसने उसे देखा कि वो अपनी जो बची कुची ताकत है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है खड़े होने के लिए, कि कहीं कोई fearful thing उसके साथ में होने वाले तो नहीं है, कोई कुछ इसके साथ में कुछ अजीब तो कुछ डरावना तो नहीं करने वाले हैं। Don't be afraid, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। She begged him swiftly. How come you speak English? He gasped. I was a long time in America, she replied. Then the wounded American was surprised कि तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो। Then she told that I was a long time in America, मैं अमेरिका में बहुत लंबे समय से रही। She saw that he wanted to reply to that but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but still he ate. उसने देखा कि वो बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बोल पाया। वो झुकी और उसे स्पून से खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा से खाया, उसकी इच्छा नहीं थी फिर भी खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम येट मूव टू कम्फर्ट हिम। तो जगह जगह ये बातें आ रही हैं कि वो उसे बचाना नहीं चाहते हैं, उसे लाइक नहीं करते हैं, उसे नफरत करते हैं, येट दे वर डूइंग, फिर भी वो कर रहे थे। तो एक दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रही, एक तो ये आयरोनिकल है और दूसरी बात ये कि ह्यूमैनिटी is over and above the caste, creed and religion, कि ह्यूमैनिटी कास्ट, क्रीड और रिलीजन से भी ऊपर है। He did not answer. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort. और उसका third day after the operation he had started to recover, उसने रिकवर होना शुरू कर दिया था। Lie down, Sadao cried, नीचे लेट जाओ। Do you want to die? क्या तुम मरना चाहते हो क्या? नीचे लेट जाओ, तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। He may force the man down gently and strongly and examine the wound. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. Now Dr. Sadao clearly said to him that you have not to stand up again and again. You have to take rest only, otherwise you may kill yourself. What are you going to do with me? The boy muttered. Now this was the question. कि अब तुम मेरे साथ में क्या करोगे? This American wounded man also knew about that question. उसको भी ये मालूम था उस क्वेश्चन के बारे में। He looked just now barely 17. He was only of 17 years age. Are you going to hand me over? क्या तुम मुझे पुलिस को, आर्मी को सौंपने जा रहे हो? For a moment Sadao did not answer because he had no answer. He finished his examination. उसने अपना एग्जामिनेशन ख़त्म किया। एग्जामिनेशन ऑफ द वुंड, वो जो घाव को अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा था उसको देखा। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर उस आदमी के ऊपर सिल्क क्विल्ट रख दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा। ही सेड, आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, यू आर ए प्रिजनर ऑफ वार। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे डेफिनेटली तुम्हें पुलिस को देना चाहिए। ही इन्फॉर्म्ड हिम। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Do not even tell me your name unless I ask you. तो वो आदमी कुछ बोलना चाह रहा था, but he simply said कि तुम कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं बोलना है तुम्हें। They looked at each other for a moment, and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Outside the door, Hana was waiting for Sadao. दरवाजे के बाहर हाना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। ही saw at once that she was in trouble. उसने उसी समय देखा कि उसको थोड़ी मुश्किल हो रही थी। क्या मुश्किल थी?
Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Now the servants had clearly resisted. Servants had clearly protested. उन्होंने साफ साफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था. उनका कहना था, यूमी ने इन्फॉर्म किया कि servants are now saying that they cannot stay in the house if the American is allowed to stay in. कि अगर अमेरिकन को यहाँ रखोगे तो हम नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं. She tells me that they are saying that you and I were so long in America. उनका ये कहना है कि तुम लोग अमेरिका में इतने लंबे समय थे that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. यानी तुम लोग अमेरिका में इतने समय रहे हो कि तुम अमेरिका के जैसे ही सोचने लग गए हो, अपने कंट्री के बारे में सोचना बंद कर दिया, तुमने अमेरिकन्स को पसंद करना शुरू कर दिया. It is not true, Sadao said harshly. Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. Dr. Sadao said कि अमेरिकन्स हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन मैं किसी व्यक्ति को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता. This is the pledge we generally take while we become a doctor. The servants cannot understand that. Servants तो उस बात को नहीं समझते. बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल बात सही है, because they are very much illiterate person. वो इस बात को नहीं समझेंगे. No, he agreed. Neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. इसके बाद में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन किसी तरह से सर्वेंट्स काम करते रहे, लेकिन ज़्यादा वॉचफुल हो गए. उनकी कर्टसी जो थी वो भी केयरफुल हो गई. कर्टसी केयरफुल होने का मतलब वह सोच समझ के अपने मालिक को अभिवादन करते थे. उनकी आंखें भी जो बड़ी अलर्ट रहती थी उस पेयर के प्रति, यानी उस डॉक्टर सदाओ और हाना के प्रति जिनके लिए वो हायर किए गए थे. इट्स क्लियर व्हाट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग. तो उनमें से एक सर्वेंट की बातचीत चल रही है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए. दैट इज़ वेरी क्लियर. हमारे मालिक को क्या करना चाहिए वो बिल्कुल साफ है. बट आवर ऑनर इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. When the man was so near death, why did he not let him bleed? This gardener, if from this paragraph it comes out that this gardener was a very old servant, even the servant of Dr. Sadao's father also. He had done a great things for him, and he had been working for him for a long time, and according to him, his old master's son should hand him over to the police or the army, and another thing that he should not have saved him. उसे बचाना नहीं चाहिए था. ये लास्ट में लाइन लिखी कि जब आदमी इतना डेथ के करीब था तो उसने उसको मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया, उसका खून निकलने देना चाहिए था. दिस वाज द ओपिनियन ऑफ द गार्डनर हु वाज अ वेरी ओल्ड सर्वेंट. दैट यंग मास्टर इज सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ, द कुक सेड कंटेम्प्टुअसली. कंटेम्प्टुअसली का मतलब होता है बड़ी नफरत के साथ में, यानी अब दूसरा जो सर्वेंट है वो कुक है, उसका कहना है कि यंग मास्टर को अपने स्किल्स पर बहुत गर्व है कि उसको लगता है कि वो किसी को बचा सकता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है. शी स्प्लिट अ फाउल स्नेक skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Wisteria vine, this is the name of a plant. तो उस समय वो कुक कर क्या रही थी, उसने फाउल, ये फाउल वही है जिसके बारे में बात की गई है कि फाउल इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड जिसको जापानीज़ अलग तरीके से खाते हैं. सबसे पहले वो उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं. भूखा मरने के बाद में जब वो पूरी तरह से उसका स्केल्टन रह जाता है फिर उसको मार डालते हैं. तो उसने वही किया, फ्लटरिंग बर्ड को, उसकी नेक को स्प्लिट कर दिया, काट दिया, और उस फ्लटरिंग बर्ड की तरफ में से जो खून निकल रहा था वो विस्टेरिया वाइन में जा रहा था. ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप इट. ब्लड जो है सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है, और ओल्ड गार्डनर ने उसका एक भी छोटा सा भी हिस्सा नीचे नहीं गिरने दिया. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? It means to say all those three servants are talking to each other. One is gardener, who is very old servant, another one is cook, and the third one is Yumi. Yumi says that
डॉक्टर सदाओ एंड हाना मस्ट थिंक ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों के बारे में तो उनको सोचना ही चाहिए। उन बच्चों का क्या भाग्य होगा, फेट क्या होगा इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज ए ट्रेटर, अगर उनके पिता को एक ट्रेटर के रूप में, देशद्रोही के रूप में उनको पनिशमेंट मिल जाता है। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby. And they were speaking in a very high voice. जब वो बातचीत कर रहे थे तो they were speaking in a very high voice. वे तेज आवाज़ में बात कर रहे थे because they themselves wanted their owner's wife, their master's wife to think about that. वो खुद चाहते थे कि उनके जो मास्टर की वाइफ है हाना उन चीज़ों को सुने। And she knew they spoke on purpose that she might hear. And Hannah also knew कि वो लोग उसे ही सुना रहे थे। That they were right she knew too in most of her being. वो ये भी जानती थी कि उनकी कई बातें सही थी, but there was another part of her which she herself could not understand. लेकिन उसी के जीवन का, उसी की पर्सनालिटी का ये दूसरा हिस्सा था जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वो दूसरा हिस्सा कौन सा था? ह्यूमैनिटी वाला, इंसानियत वाला, दया वाला, काइंडनेस वाला। It was not sentimental liking of the prisoner. It doesn't mean that she had started to like the prisoner, कि उसने उस prisoner को पसंद करना शुरू कर दिया है, या वो prisoner उसे अच्छा लगने लग गया है कि she had come to think of him as a prisoner, वो उसे एक prisoner के रूप में ही मानती है। She had not liked him even yesterday, वो उसे कल भी like नहीं करती थी। When he had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom, जब उसने अपना नाम बताया था तब भी उसे वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आया। टॉम जो नाम है ये काफ़ी फेमस नाम है अमेरिका के अंदर, जैसे हमारे इंडिया में सोनू मोनू नाम होते हैं, उसी प्रकार से ये टॉम एंड हैरी ये अमेरिका में बड़े फेमस नाम हैं। शी हैड ओनली बॉर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो, तो जब उसने अपना नाम बताया था थोड़ा वो उसके सामने उसने उसका झुक के अभिवादन किया था। शी सा हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू असाउज इट, उसने देखा था कि उसकी आँखों में मतलब उसको झटका लगा था, उसको जब उसने उस ज़्यादा कुछ उसको आंसर नहीं दिया जब उसने अपना नाम बताया। बट शी डिड नॉट विश टू असाउज इट मीन्स टू मूव इट फर्दर, लेकिन वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इंडीड ही वॉज ए ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, बस वो इतना जानती थी कि वो उसके घर में सबसे बड़ी ट्रबल था। एज़ फॉर सदाओ, जहाँ तक सदाओ का सवाल है, एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वुंड केयरफुली, वो घाव को अच्छे से केयरफुली देखता। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, लास्ट जो स्टिचेस थे वो भी निकाल लिए गए। द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, एंड ही न्यू वेरी वेल दैट विद इन 15 days द यंग मैन वुड बी ओके। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब सदाओ ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि ही वॉज गोइंग टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, दैट्स वाई ही वॉज गोइंग ऑन टू राइट हिज लेटर। और लेटर में ये लेटर की लैंग्वेज उसने लिखना शुरू की थी। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. This was the first line which he began with. So far he typed, यहीं तक उसने टाइप किया था, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. लेकिन आगे वो नहीं लिख पाया और उसने अपने एक सीक्रेट ड्रॉवर में उस रिपोर्ट को रख दिया। ऑन द 7th day आफ्टर दैट, उसके 7वें दिन 2 things हैपन, 2 चीज़ें हुई। क्या क्या चीज़ें हुई? इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, नौकरों ने घर छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ्स, उनकी जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो चीज़ें थी वो बड़े से कॉटन के कपड़े के अंदर बांध दी गई थी। व्हेन हाना गॉट अप इन मॉर्निंग नथिंग वाज डन, जब हाना उस सुबह उठी कुछ भी नहीं हुआ घर में। द हाउस नॉट क्लीन, घर डर्टी, द हाउस वाज डर्टी। फूड नॉट प्रिपेयर्ड, फूड वाज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड शी न्यू व्हाट इट मेंट दैट सर्वेंट्स हैड लेफ्ट द हाउस। शी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। डिसमेड मीन्स अनहैप्पी, सैड, वो दुखी थी, डरी हुई थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन चूँकि वो मिस्ट्रेस थी इसलिए अपना जो डर है वो क्यों दिखाएगी। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। उसने अपना कोई डर नहीं दिखाया, सिर्फ उनके सामने जब वो नौकर आए उनके सामने थोड़ा ग्रेसफुली उनका अभिवादन किया, उन्हें पैसा दिया और उनको वहाँ से भेज दिया। दे वर क्राइंग, दे वर वीपिंग, वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन वो नहीं रो रही। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। कुक और गार्डनर तो बहुत पुराने नौकर थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, एंड यूमी वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन।
She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hana. She was so grieving. Grieving means full of unhappiness. वो इतना दुख से भरी हुई थी कि वो जाने के बाद में ही वापस हाना के पास भाग कर आई. If the baby misses me too much tonight, send for me. I'm going to my own house and you know where it is. अगर बच्चा मुझे मिस करे तो मुझे बुला लेना, मेरा घर पास ही में. थैंक यू, हाना ने कहा. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. बट शी वॉज डिटरमिन्ड कि वो हाना इसको यूमी को नहीं बुलाएगी चाहे बच्चा कितना ही चिल्लाए. शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन. अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपना घर का काम खुद किया. नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन. उनमें से किसी ने आपस में सर्वेंट्स के बारे में बात नहीं की. बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हाना उस प्रिजनर के पास में ब्रेकफास्ट लेके गई, देन शी केम बैक टू सदाओ. सदाओ के पास वापस आई. वाई इज़ इट वी कैनॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. शी आस्क्ड हिम. इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू. वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़. कि यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी आइडिया है कि हमें क्या करना चाहिए, हम दूसरों से अलग क्यों सोच रहे हैं. सदाओ डिड नॉट आंसर. सदाओ ने कोई आंसर नहीं दिया. बट अ लिटिल लेटर ही वेंट टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रुस्कली. और उसके बाद में वो गया प्रिजनर के पास में और बड़े क्लियरली आउटवर्डली उसे बोला, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट. आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 minutes एट ए टाइम. बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि यू स्टे ओनली 5 minutes एट ए टाइम. एक बार में तुम केवल 5 ही मिनट खड़े रहो. टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग. कल आप थोड़ा सा ट्वाइस कोशिश कर सकते हैं, 10 मिनट की कोशिश कर सकते हैं. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. इट वुड बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि जल्दी तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस आ जाए, तुम्हारी ताकत कमजोरी वापस दूर हो जाए और ताकत तुम्हारी वापस आ जाए. ही saw the flicker of terror on the young face. यंग फेस पर अभी भी यानी उस अमेरिकन के फेस पर टेरर की जो छाया थी साफ देखी जा सकती थी. दैट वॉज स्टिल वेरी पेल. ओके, द बॉय मर्मर्ड. एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर. ही वॉन्टेड टू से सम मोर थिंग्स. आई फील आई ought टू थैंक यू. और उसने बोला भी सही, मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ. डोंट थैंक मी टू अर्ली. मुझे इतनी जल्दी थैंक मत बोलो, थैंक यू मत बोलो. इट मीन्स टू से सदाओ हैड सम बिटर प्लान्स आल्सो. सदाओ के पास में उसके लिए कुछ बिटर प्लान्स भी थे. ही saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's. उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था. The scars on his neck were crimson for a moment. जो उसकी गर्दन पर घाव थे वो क्रिम्जन हो गए. क्रिम्जन होने का मतलब लाल हो गए, रेड कलर के हो गए. इट मीन्स टू से ही वॉज टेरिफाइंग लाइक एनीथिंग. वो डर रहा था बुरी तरह से जब उसने सदाओ ने उसको ऐसा कहा कि इतना जल्दी मुझे थैंक यू मत बोलो. दो स्कार्स, ये घाव कैसे घाव है? सदाओ डिड नॉट आस्क. सदाओ ने बिल्कुल भी नहीं पूछा. उसने बिल्कुल नहीं पूछा उन स्कार्स के बारे में. इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड. आफ्टरनून में दूसरी चीज़ हुई. क्या हुई? हाना वर्किंग हार्ड ऑन एन अनअकस्टम्ड लेबर सा ए मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. सब हाना बहुत कोशिश कर रही थी. उसे घर का काम करने की हैबिट नहीं थी. अनअकस्टम्ड का मतलब होता है विच वाज नॉट इन हैबिट, जो कस्टम में नहीं है, जिसकी उसकी हैबिट नहीं है. उसने क्या देखा? मैसेंजर केम फ्रॉम द रॉयल कोर्ट. रॉयल कोर्ट का मतलब रॉयल पैलेस. रॉयल पैलेस से एक मैसेंजर आया था. ही वॉज इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म. ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन के आया था. हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ. जैसे उसने उसको देखा शी वॉज फियर्ड. वो बहुत डर गई. उसे लगा द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, कि नौकरों ने बाहर जाकर ये बात फैला दी है. शी रैन टू सदाओ. सदाओ के पास में गई. गास्पिंग, बुरी तरह से हाँफ रही थी. अनेबल टू अटर ए वर्ड, कुछ भी नहीं बोल पाई. बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड. शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली. उसने उसकी तरफ इशारा करके बताया कि मैसेंजर आया है. सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक. ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन. सदाओ अपने कमरे में था, जिस कमरे का जो मुंह था वो साउथ के सनशाइन की तरफ खुलता था. व्हाट इज़ इट? ये क्या चीज़ है? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म. यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड. द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन. यानी ओल्ड जनरल की तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको पैलेस में आना है. ओह, हाना ब्रीथ. इज़ दैट ऑल? क्या यही बात है? ऑल? यही बात है? द मैसेंजर एक्सक्लेम. इज़ इट नॉट इनफ? क्या ये इनफ नहीं है? मीन्स
Hannah was expecting that he had come for that matter of American, but actually it was a different matter. It was the matter of general's illness. Indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than her work. बच्चे सोए हुए थे, वो किचन में थी, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ ऐसे ही बैठी हुई थी. उसको थकान ज़्यादा हो रखी थी, एग्जॉस्टेड, टायर्डनेस. लेकिन ये टायर्डनेस काम की नहीं थी. दिस वॉज बिकॉज ऑफ फियर. ये टायर्डनेस थी उसके डर की. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू. मुझे लगा कि वो आपको गिरफ्तार करने आए हैं. ही गेज डाउन इन टू हर एंशियस आइज. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस. समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ. डिस्ट्रेस मीन्स टेंशन. तुम्हारी टेंशन को देख के मुझे लगता है कि मुझे इस आदमी से जल्दी ही छुटकारा पा लेना चाहिए, कैसे ना कैसे करके. तो रिमेनिंग पार्ट वी शैल बी रीडिंग इन द थर्ड पार्ट जो इस वीडियो का अपलोड होगा उसमें हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे लेसन का, जो बचे हुए 7 पेजेस हैं. वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई फ्रेज़ वगैरह या कोई सेंटेंस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें. थैंक यू.